already said, थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज कर देती हूँ कि कंपनी क्या है. इसका डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है. अ कंपनी इज एनी काइंड ऑफ फॉर्मल बिजनेस विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. बेसिकली हम जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे टोटल इस कंपनी लॉ में. इनफॉर्मल बिजनेस के बारे में बस वील हैव अ आइडिया, बट दिस एंटायर कंपनी लॉ इज अबाउट द रजिस्टर्ड कंपनीज. So the definition of the company is given in section 2 subsection 20. Now coming back to the core legal attributes or the key characteristics of a company. So अब इस पीपीटी में और पढ़ते वक्त हम जिस जिस सेक्शन को पढ़ेंगे बस आपको उतना ही सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है. कंपनीज एक्ट अगर आप देखें बहुत मोटी बैरेट है, अराउंड 400 समथिंग सेक्शंस है. वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन एवरी सेक्शन. सो दैट इज वाई मैंने जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पीपीटी में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का डेफिनेशन उस सेक्शन में दिया गया है. अब coming back to the key characteristics of the company, it is provided in the different section and mentioned also in the PPT slide also. So separate legal entity, it is mentioned under section 9. Why a company is called a separate legal entity? As it is registered under the Companies Act, it has a separate legal entity because it is seen as a juristic individual. Why it is called as a juristic individual? So that it has the power to sue someone and also of getting sued by somebody else. So it has its own legal entity or a distinct individual personality, so that it can run on its own despite the change in number of members, despite the change in ownership. The company has its own individuality. So that is why it is the meaning of separate legal entity in section 9, which is also related to perpetual succession. If you see the third characteristics, perpetual succession, which says that members may come and go and members may come and members may go, but the company goes on forever. So that is how perpetual succession and separate legal entity are both given under section 9 under the characteristics of a company. Secondly, limited liability of the members under section 2 subsection 68 of Companies Act. Under section 2 subsection 68. Now, what is limited liability of the members? Now, limited liability means that shareholders' liability is restricted to the unpaid amount of the shares. Means the shareholders are limited. I mean, the liability of the shareholders are limited till to the amount of the shares or the money they have invested within. This is the protection which encourages investment by keeping personal risk, making it fundamentally different from sole proprietorship. Now, how is the sole proprietorship different from limited liability partnership or limited liability of the members? Now, what happens in a sole proprietorship, as the name suggests, sole proprietorship, it means the entrepreneurship, or it is about a one person company in which a person is the entire owner of the company. So every profit and losses, he is liable to the any kind of profit or loss. So that is why his liability is unlimited. But whereas that is how it is different from the limited liability. In the limited liability, the partners who invest in the share, their liability is limited to the unpaid amount of the shares. So it is another characteristic of company. Now, transferability of shares. The another characteristics, transferability of shares, it is mentioned under section 58 of Companies Act. Transferability of shares means, now what our discussion was in the last class, I was also a little bit confused regarding the public company and government company. So what I have found out and I have made a difference between this is that if you see the table, private company, if we understand from this feature, it is clear cut that private company, mainly the ownership is of the private individuals, whereas the public company, it is open to the public. I mean, the shares of the company are open to the public.
I mean, that shares are traded on exchange, and in the government company, more than the shares are more than 51%. It is the entire, I mean, entire meaning of the private, public, and government company. Now, इसमें क्या होता है प्राइवेट कंपनी में कि शेयर्स दे आर नॉट ट्रेडेड पब्लिकली, शेयर्स लिमिट रहता है, शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड. पब्लिक कंपनी में ओपन रहता है, दैट इज वाई इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज. एंड गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स जो है दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और स्टेट और बोथ बाय द गवर्नमेंट और the state together. Now, goal of the public company is to make profit, but in the private company is profit, public company it is also profit, but in a transparency way. That is why it is open to the public. And गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इसमें शेयर रहता है, दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस और फॉर द प्रॉफिट. मैनेजमेंट इसका पब्लिक कंपनी में रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें भी प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, पर government company mein government appointees rehte hain, the government who appoints as the person as the director or the person who is appointed by the government to manage the particular company. So this is all about, I'll share this particular ppt or the pdf regarding the public and private company just to clear the topic. Now coming back, transferability of shares. Last characteristic feature is common seal. Now पहले के जमाने में क्या होता था कि कंपनी का एक कॉमन सील जो हम बोलते हैं स्टैम्प वो चला आता था, पर नाउ इट इज ऑप्शनल बिकॉज अभी के जमाने में क्या चलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मोड और एनीथिंग which is documented electronically with the signature. So that is why common seal has become an optional characteristic feature of a company, but whereas it was considered and it is still nowadays. So while historically mandatory, the Companies Act made common seals optional. Companies may now execute documents through authorized signatories only. The seal, when used, serves as a company's official signature on important documents and contracts. Okay. So next topic of discussion is what are the different kinds of business forms in India. From starting to sole proprietorship to limited liability partnership. Now ये जो different business forms in India का यहाँ पे जो है इसका I mean it's a elaborative discussion. I have prepared a slide in which there is one liners. इस पे हमें समझने को थोड़ा easy होगा. Then we'll come back to the detailed thing. Now this is the second subunit of unit 1, which is types of companies. Now, firstly, which we are studying about the company, which is the registered under the Companies Act under Section 2, subsection 20. Another type is sole proprietorship, which I said it is about it is basically about the entrepreneurship or startups, which is now promoted. It is very rampant in India. For example, if we all must be having the idea about the Shark Tank, which is in broadcasted in this Star Plus. It is promoting the entrepreneurship. So it is sole proprietorship is all about that, when a person comes with the idea and invests his own money, time and energy and ideas into business or an organization. That is all about sole proprietorship. Now partnership form is when a group of persons invest a particular amount of money or their shares for a profit making. That is a partnership form. And limited liability partnership is the same as a partnership, but here the liability of the partners are limited, but in the partnership form the liability of the partner is unlimited. Now, what is one person company? One person company is somehow same as the sole proprietorship company, but it varies in certain features such as the capital raising, compliance burden, and all sort of things. Now, we'll study the first feature is about the legal entity. In the company, the legal entity is separate. In sole proprietorship, the legal entity means here is the individuality or the personality of a company. Now, in the company, it is the person who owns the company.
it is separate, but मैडम in a sole बार बार आपका proprietorship it is आवाज not ब्रेक हो रहा separate है. because it is attached with the. Okay, so coming back to the topic, as I was in the first ये feature, मैम, that is, ये एक्सक्यूज मी मैम, हम जो है पहला फीचर पढ़ रहे थे, that is about legal entity. Legal entity means legal. What is legal entity? Means a individual personality or a juristic personality. तो पहले का सिचुएशन में क्या है, कंपनी का क्या हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या है, कि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज इट हैज अ सेपरेट इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इट कैन रन ऑन इट्स ओन. सोल प्रोप्राइटरशिप में इधर नॉट सेपरेट क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज अटैच्ड विद द ओन प्रोप्राइटर. I mean the proprietor, the person who comes with the idea of the particular business, who has put his mind, heart and soul into the business along with its finance and energy. So that is why sole proprietorship mein, why it is not separate, because the liability of the proprietor is unlimited. That is why all the profit and losses he bears himself by alone. I mean, he himself alone bears it. So that is why sole proprietorship mein legal entity it's not separate. Now partnership form mein bhi it's not separate because the partners they invest together. So that is why their liability is unlimited. They face the every kind of profit losses together in a firm. Limited liability partnership as it is under the separate LLP Act. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड बिकॉज अंडर दिस एक्ट द पार्टनर्स आर लाइबल अपॉन ओनली द अनपेड शेयर्स, द शेयर्स विच दे हैव इन्वेस्टेड, बस उतने अमाउंट के लिए दे आर लाइबल. आई मीन दे आर लिमिटेड टू द शेयर्स दे हैव invested in the company. Now, one person company, it is also separate. I mean, the company has a separate legal entity, and the exact provision under which the one person company is provided, that is in section 2 subsection 62. Now, मेंबर लाइबिलिटी शेयर्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया. कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, और एलएलपी और वन पर्सन कंपनी में भी लिमिटेड है. अनलिमिटेड किस में है, बस सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज हिज एवरीथिंग, आई मीन हु हैज इन्वेस्टेड हिज एंटायर मनी, आइडिया एंड एवरीथिंग इनटू द बिजनेस, एंड ऑल्सो इन द पार्टनरशिप फर्म में ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्ट. So that is why the limit, I mean liability here, in the both the scenarios it is unlimited. Capital raising, कंपनी में इजी है कैपिटल रेजिंग वाया शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल रेजिंग इधर इजी नहीं है क्योंकि इट इज लिमिटेड ओनली टू द ओनर, और पार्टनरशिप फर्म में भी इट इज लिमिटेड टू द पार्टनर्स. अगर हम समझ जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस यही है बस कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ये स्टार्टअप होता है किसी सिंगल पर्सन के आइडिया से. जब वो सिंगुलर चीज प्लूरल हो जाता है, जैसे कि बहुत लोगों 4-5 लोगों के आइडिया में चलता है, दैट इज वो कहलाता है पार्टनरशिप फर्म. बाकी सब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है वो समवॉट सेम ही है. नाउ कंप्लायंस बर्डन भी इस पे कंपनी में हाई है क्योंकि इसका एनुअल फाइलिंग्स, ऑडिटिंग, रिटर्न, सब कुछ जितना भी इसका प्रोसीजरल नॉर्म्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली लिमिटेड है क्योंकि इधर एक ही बंदा है तो इसके हिसाब से ही पूरा कंपनी चलता है. सो दैट इज व्हाई द एनुअल फाइलिंग्स, ऑडिटिंग एंड द कंप्लायंस बर्डन इज वेरी मिनिमल इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत मॉडरेट होता है क्योंकि इधर सिंगल पर्सन नहीं है पर इधर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट होता है. एलएलपी में भी मॉडरेट होता है और वन पर्सन कंपनी में भी मॉडरेट होता है. नाउ परपेचुअल सक्सेशन, मैंने जो पहले बोला था आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में कि लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन दोनों एक साथ इंटरलिंक्ड है बिकॉज अ कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी, दैट इज व्हाई इट कैन रन ऑन इट्स ओन, कि मेंबर्स चेंज होते रहे पर कंपनी जो है दैट कैन रन ऑन इट्स ओन, कि कंपनी जो है वो रहता है. सो परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक के बाद एक ओनर चेंज होते रहते हैं पर कंपनी कैन रन ऑन इट्स ओन. सो इन द सेम सिनेरियो परपेचुअल सक्सेशन में क्या है, कंपनी में यस इट कैन हैव परपेचुअल सक्सेशन अंडर सेक्शन 9. सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली नो, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है, जो
मेन मतलब जिसके आइडिया से ये बिजनेस चल रहा है, अगर वो ही इंटरेस्टेड नहीं है, वही नहीं रहा, तो ये बिजनेस नहीं चल पाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नो इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप में भी ऑब्वियसली जब पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे फर्म के, तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं चल पाएगा. एलएलपी में चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रह जाता है. इसीलिए विदाउट द पार्टनर्स ऑल्सो इट कैन रन. द अगर जब इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं तब भी ये कंपनी रन कर सकता है. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ 1% कंपनी ऑल्सो येस लिखा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर नहीं रहा तो उसकी जगह पे कोई और इसको रिप्रेजेंट कर सकता है इन 1% कंपनी. नाउ दीज आर द बेसिक फीचर. मैंने बहुत सारा चीज लिख लिया है इस पे, पर बेसिक अगर आप इधर 6 से 7 पॉइंट्स. ये आपने जो 1% ऑफ कंपनी बताया, ये क्लियर नहीं हुआ. एक कंपनी में तो अगर आ रही हूँ मैं उस टॉपिक पे आ रही हूँ. ये हमने बस 1 पॉइंटर्स पे पढ़ा. अभी इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे है. कमिंग बैक टू द टॉपिक. Now, what is a 1% company? 1% company is introduced under section 2 subsection 62 of the Companies Act. इसका सेक्शन याद रखिए, 2 subsection 62. Specifically designed for solo entrepreneurs who desire the benefits of corporate structure. Now, इधर सोल प्रोप्राइटरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप 1% कंपनी में क्या डिफरेंस है कि in an OPC it allows a single person to operate a corporate entity with limited liability protection. Means here बाहर के investors भी जो partners हैं, they can invest into the company and also they have the shares into the they have the equity shares in the company. But sole proprietorship में क्या है, the entire ownership lies with the single person, and that is why after the proprietor is gone, the company cannot run in the perpetual succession. That is why in sole proprietorship it is written no, because after the proprietor ceases to exist, कि जब proprietor ही नहीं रहता है, जो मेन entrepreneur है जिसके आइडिया पे ये स्टार्टअप शुरू हुआ है, वही नहीं रहता है, तो फिर क्या होता है कि ये कंपनी जो है it winds up. But in the case of 1% company, though it's one person is there in the company, but here there are number of partners, limited liability. The partnership, the liability of the partners here is limited. That is why the particular person who started the company, if the person is not there, somebody else can take the ownership in the company. Now it requires nomination of another person who will assume control in case of members death और इनकैपेसिटी. 1% कंपनी में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो तो इन्वेस्ट करते हैं, उनका लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहता है, पर जो पर्टिकुलर पर्सन जिसने कंपनी शुरू किया था, इन केस ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर्स डेथ और इनकैपेसिटी, यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनेशन होता है और अनदर पर्सन इज अपॉइंटेड एज द director or the owner in a company. For example, small scale ventures जो हमारे होते हैं, so that can be taken the example for 1% company. सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने बता दिया, ये स्टार्टअप्स हैं बेसिकली. ये क्या है, द सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल ओन्स एंड ऑपरेट्स द एंटरप्राइज. यहाँ पे देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस. दे आर इन द सेम इन द आइज ऑफ लॉ. दैट इज वाई यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं है. दैट इज वाई द यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कंपनी का. बोथ सोल प्रोप्राइटर और कंपनी का दोनों ही का ही सेम आइडेंटिटी है. और मतलब कंपनी के नाम पे अगर सेम आइडेंटिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए इस स्टार्टअप के नाम पे अगर हम केस फाइल करते हैं कल को, तो पर्टिकुलर पर्सन जिसके आइडिया पे ये स्टार्टअप चल रहा है उसी के नाम पे ही वो केस फाइल रजिस्टर्ड होता है. पर कंपनी जब when a company is it's a company, so इसका सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई पर्सनली इस पे लाइबल नहीं होता है. मान लीजिए कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज है, कल को कोई और बदल गए, so they will deal the particular case. So nobody is attached here personally, but sole proprietorship thing becomes a little personal. So that is why it does not have a separate legal entity.
एंड सेम इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंगुलर थिंग, जब प्लूरल हो जाता है दैट इज इन द पार्टनरशिप फर्म. सेम थिंग इधर भी ये है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म में ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं. और ये पार्टनरशिप फर्म इज रन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आप लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट 2 में. सो इट इज रन अंडर दैट एक्ट. नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, बेसिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज लिमिटेड टू देयर अनपेड शेयर्स ओनली. सो दिस इज द ओवरऑल. मैम, जो आपने 1% कंपनी के बारे में बताया उसके रिगार्डिंग मेरे को पूछना है. सपोज कि पहले उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसने कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके अंदर वो सब बेनिफिट उसका जो है एनुअल रिटर्न भी जाएगी, सब कुछ भी जाएगी. तो वो अपना स्टेक, जैसे शार्क टैंक में आता है, तो अपना स्टेक उसको धीरे धीरे सेल आउट करेगा ना. वो वाला मेन डायरेक्टर वही रहेगा, बट धीरे धीरे कुछ पार्ट सेल आउट करेगा उसको, मतलब अपने शेयर किसी दूसरे को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. तो बाद में वो भी तो नॉर्मली कंपनी बन जाएगी ना, या वो लाइफ टाइम तक ही 1% कंपनी रहती है? नहीं, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम तक नहीं रहेगी. जब मान लीजिए कि अगर, वही मैंने पॉइंट बोला ना कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 1% कंपनी में भी जो है इन्वेस्टमेंट होता है और इनका जो है लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है. और जब मान लीजिए कि जिस इंसान ने वो, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस होता है, जिस इंसान ने अगर वो स्मॉल स्केल वेंचर जो स्टार्ट किया, अगर कल को चल के उनका कुछ भी इनकेपेसिटी हो जाता है या फिर डेथ या कुछ भी, तो फिर जो पार्टनर्स रहते हैं बच्चे, उनके बीच में फिर नॉमिनेशन होता है. तो देन अनदर पर्सन इज elected as the head who will run the company. So that is 1% company, कि यहाँ पे एक सिंगल ओनर रहते हैं, बाकी सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं. ओके. तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर 1% कंपनी जाएगा और वो कंपनी का किसी भी तरह से मतलब डेब्ट डिफॉल्ट करती है या अपना लोन पे नहीं कर पाती, तो उस केस में उस कंपनी के एसेट्स बेच के वो जिसका भी लोन है वो वहां से वसूल सकते हैं. उसके अलावा कहीं और से उसको उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को नहीं टच कर सकते, जो उसका डायरेक्टर रहेगा मतलब पर्सनल एसेट्स को उसको टच नहीं कर सकते. ऐसा ही होगा ना इसमें? हाँ जी, ये लिमिटेड है. ठीक है मैडम, थैंक यू. जी जी. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंपनी. कंपनी के एडवांटेजेस क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब पहले तो दो चीजें जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, दो कॉमन पॉइंट है जो जिसको आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं. पहली बात तो ये है सेक्शन 9 वाला, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, जो सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और देखा जाए तो आपका एडवांटेजेस भी हो जाता है, क्योंकि इनको जैसे कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाता है, तो वो किसी के ऊपर, किसी मेंबर्स के ऊपर पर्सनली डिपेंडेंट नहीं होता. मेंबर्स चाहे चेंज होते रहे, तो कंपनी कैन रन ऑन इट्स ओन. तो इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन बोथ जगह में अंडर सेक्शन 9 में लिख सकते हैं. नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, जहाँ पे ये देखा गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन देने पर मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हुए, कि अब उनका जो लाइबिलिटी है दैट इज वो सीमित है कहाँ तक, अनपेड शेयर्स तक, कि जितना वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बस उतने के लिए ही वो लाइबल है और अपना पर्सनल लेवल पे जाके उनकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी. सेकेंडली, इजियर कैपिटल रेजिंग. कैपिटल रेजिंग कैसे इजी होता है कंपनी के लिए, बोथ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. नाउ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में सिंपली एक लाइन में ये बताऊं कि इक्विटी शेयर में क्या होता है, जब कंपनी इक्विटी शेयर्स देता है तो नाम से ही पता चलता है इक्विटी. इक्विटी मतलब जैसे कि मान लीजिए वोटिंग राइट्स और ओनरशिप, जिसके पास कंपनी का इक्विटी शेयर रहता है उसके पास ओनरशिप भी रहता है और वोटिंग राइट्स भी रहता है. पर इसमें क्या होता है कि हाई इन्वेस्टमेंट होता है फॉर अ अनसर्टेन टाइम पीरियड, हाई रिस्क भी रहता है, पर अगर रिटर्न्स अच्छे से आता है तो हाई रिटर्न्स भी रहता है. तो दैट इज इक्विटी शेयर्स. डिविडेंड इधर क्या है कि अनसर्टन है इक्विटी शेयर्स में. प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस वर्ड से हमें पता चलता है कि प्रिफर्ड शेयर, मतलब मान लीजिए इधर आपके पास ना की ओनरशिप रहेगी
रहेगा, ना कि वोटिंग राइट्स रहेगा। और लेकिन एक फायदा इधर ये है प्रेफरेंस शेयर का कि अगर आपके पास कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, मतलब आप एक लिमिटेड, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी में, आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो इन्वेस्टमेंट है, और आपके रिटर्न्स भी बहुत आपको इजीली वापस मिलेंगे, आपके रिस्क के चांसेस इधर कम रहते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इजियर कैपिटल रेजिंग कैसे होता है कंपनी का, कंपनी इधर अपना इक्विटी शेयर बेचती है या फिर प्रेफरेंस शेयर, दोनों मोड्स है कंपनी का कि इस तरीके से वो कैपिटल रेज करती है। इसका मतलब है कि बाहर से फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट करती है, बोथ बाय इक्विटी शेयर्स एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स। इन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का जो एग्जांपल है और डेफिनेशन है, मैंने इजियर कैपिटल रेजिंग के ये वाले कॉलम में लिखा हुआ है। We can write in a study and write that in the examination point of view. So that is the advantages of company over other firms. Now कमिंग बैक टू डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब मान लीजिए कुछ भी दिमाग में एग्जाम में नहीं आता है, तो बेसिक चीज जो हमारे आंसर पे रह सकती है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स की कंपनी जो है, बेसिकली उसका जो एनुअल रिटर्न्स है, ऑडिटिंग है, ये सारे चीजें अंडर कंपनीज एक्ट, अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो इधर मैंने लिखा है इस वाले बॉक्स में सेक्शन 92 में कि when a company is registered under the Companies Act, it has to it is mandatory to file the annual returns in section 92. सेक्शन 134 देखिए, 134 में क्या है, रिक्वायर्स प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन इंक्लूड बोर्ड मीटिंग्स, क्वार्टरली मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, ऑल दीज थिंग्स। तो कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है तो इसके एडवांटेजेस के साथ ड्रॉबैक्स भी ये है कि इसके जितने भी कंप्लायंस या प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ये सारे चीजें जो हैं हमें टाइम टू टाइम जो ईयरली रिक्वायरमेंट्स हैं वो करनी रहती है। तो इसको याद रखने के लिए सेक्शन 92 एंड सेक्शन 134 वी हैव टू रिमेंबर अंडर द कंपनीज एक्ट। नाउ हायर सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों हायर सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है, जब कंपनी रजिस्टर होता है तो इसका जो भी MOA एंड AOA, नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आगे वाले यूनिट मैं डिटेली बताऊंगी ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये है कि कंपनी का जो भी, मतलब मान लीजिए मेमो, जैसे कि हम एक, जो आप एक इजी लैंग्वेज में समझिए, प्रोस्पेक्टस। जब हम जाते हैं किसी कॉलेज को समझने के लिए या फिर किसी कंपनी एंटिटी को, हम पहले क्या मांगते हैं कि आपका लीफलेट दे दीजिए या फिर आपका ब्रोशर दे दीजिए। सो व्हाट इज अबाउट द व्हाट कंटेंट्स इन द लीफलेट एंड द ब्रोशर is regarding the memorandum, that what the company consists of, how many members and there, and all sort of things. Now articles of association is the more details of the company, that is what is how many members are there, what are the share, what are the net profit, what are the total investment in the company. So more detailed thing is the article of association. Now ये सब चीज को सेटअप करने के लिए जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, इसका जितना भी एक्सपेंसेस चाहिए, ये सब आपका डिसएडवांटेजेस में आ जाता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होता है। ये सब चीजें जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। नाउ रेगुलेटरी एंड मैम, ये मेमोरेंडम और AOA बाद में डिटेल में डिस्कस होगा या यहीं पे फिनिश हो जाएगा? नहीं, ये इसका जो है, इसका सेकंड यूनिट में है, मैं देख रही थी, इसका एक पूरा अलग सा PPT प्रोवाइड होगा। ये पूरा लॉन्ग आंसर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो वील डिस्कस। ओके, नाउ लिमिटेड प्राइवेसी एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। लिमिटेड प्राइवेसी ये है कि आपके कंपनी, अगर जब आपका मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड रहता है तो आपके कंपनीज के बारे में जितना भी डिटेल्स है, मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर डिटेल्स जो लिखा है, इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, DIN वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट रखना है इन द MCS वेबसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ, MCA का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे आपको सब
कुछ जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट रखनी है। नाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर इन प्राइवेट कंपनीज, ये डिसएडवांटेज है किसके लिए, पर्टिकुलरली प्राइवेट कंपनी के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट एंटिटी जो है, यहाँ इसके ओनर्स जो है वो जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। मान लीजिए एक प्राइवेट एंटिटी चल रहा है, सो दैट इज वाई इसके जो शेयर्स है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। सो इट इज, ये रेस्ट्रिक्शन है पर इट इज अ डिसएडवांटेज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 44। Now, rigid operational framework. ये rigid operational framework is somewhat related to this thing, complex compliance requirements. So these are the same thing. तो 4-5 चीजें अगर आप याद रखते हैं, that will cover under the disadvantage of a company. Now, कंपनीज एक्ट के कुछ रेलिवेंट सेक्शंस हाईलाइटिंग कंपनीज नेचर। पहला हमने पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, इसको पूरा अच्छे से याद रखना है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आपका है डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है सेक्शन 3 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन सेक्शन 9 में क्लियरली मेंशन है। सेक्शन 9 में इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी आएगा और एडवांटेजेस में भी आप लिख सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी को और परपेचुअल सक्सेशन को, दोनों ही टॉपिक आता है सेक्शन 9 में। एनुअल रिटर्न फाइलिंग की बात करी गई है एक्सप्लिसिटली सेक्शन 92 में, जो कि आपका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, ईयरली आपको करना ही है। 134 बोर्ड्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज के क्लॉज में इसीलिए आता है क्योंकि आपका कोई प्राइवेसी नहीं रहता और सारा चीज जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट visible to all under the MCS provision. So that is why these are the basic feature. अभी तक मतलब यूनिट 1 का सब यूनिट 1 में हमने जितना टॉपिक पढ़ा है उसके हिसाब से ये जितने प्रोविजन है ये यहाँ पे एक हाईलाइट हुआ है। इसका मतलब नहीं कि टोटल जो कंपनी लॉ में हमें बस इतना ही पढ़ना है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू यूनिट 1 सब यूनिट 1, मतलब ये वाला पॉइंट जो मैं दिखा रही थी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, हिस्ट्री, मीनिंग और काइंड्स, बस ये 3 बिट्स के लिए इतना सेक्शन हमारा कंपनी लॉ का सफिशिएंट है। नाउ ये भी कंपैरेटिव स्नैपशॉट आप लोग एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं एग्जाम से पहले, जस्ट टू रिमाइंड की पॉइंटर्स क्या क्या लिखने हैं अगर टाइप्स ऑफ कंपनी आता है इन लॉन्ग क्वेश्चन, सो दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज, थोड़ा सा बस इंट्रो देके ही मैं विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज मैम ये जो आपने टाइप ऑफ कंपनी का बताया है इसमें कंफ्यूजन है तो जैसे कि आपने बताया था नॉर्मली लिस्टेड कंपनी बताया था, नॉन लिस्टेड कंपनी बताया था, दूसरा आपने जो जी हम लास्ट के 5 मिनट इसको डिस्कस करें क्योंकि ये वाला पॉइंट बस, हाँ जी ओके। नाउ कॉर्पोरेट पर्सन 4th सब यूनिट आपका है, मैं पूरा क्लियरली यूनिट वाइज चल रही हूँ ताकि आपको कोई मतलब ये कंफ्यूजन ना हो। यूनिट 1 में हम सब यूनिट 4 में है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट वेल। नाउ ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉर्पोरेट वेल से हम क्या समझते हैं, वेल वर्ड से हम क्या समझते हैं बेसिकली, घूंघट या पर्दा। तो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कौन से सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल जो है ये डॉक्ट्रिन अराइज कर सकता है, कुछ आइडिया आता है? ये बेसिकली मैम ये होता है ना कि जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी से अलग होते हैं, तो कई बार ऐसे कंपनी में वो मैनिपुलेशन कर जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल रिलेटेबल है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जब जो लीगल कंप्लायंस है, जैसे कि कोई सही रास्ते से चल रहा है, इट्स वेल एंड फाइन, when the company is not complying with the legal compliance or the legal way, it's not following the legal path, तो कंपनी का सिंपल भाषा में ये समझिए कि कंपनी का जो लीगल एंटिटी है या ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी वाला जो फीचर उसको मिला है वो हट जाता है और कंपनी को एज अ इंडिविजुअल पर्सन देख लेते हैं कि ये जो गलती हुई है वो किसका हुआ है। जैसे कि आपने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हुआ है या फिर एम्प्लॉय का हुआ है या फिर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। सो
दैट कम्स टू अ पर्सनल थिंग कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल मतलब कंपनी का जो जूरिस्टिक पर्सनैलिटी मिला है या फिर जो लीगल एंटिटी वाला थिंग मिला है, इट लिफ्ट्स अप व्हेन इट गोज beyond the legal way or when the anything which is illegal in nature. So corporate veil या juristic personality वाला feature वहीं पे उड़ जाता है कंपनी का. So the doctrine of lifting the corporate veil means ignoring the corporate nature of the body of individuals who incorporated as a company. So a company is a juristic person, but in reality it is a group of people who are beneficial owners. हमें पता है company is a juristic person, हम समझने के लिए बोलते हैं, but in reality क्या है, group of people जो उनको मिलके चलाते हैं. So that is why being an artificial person, company cannot act on its own. It can act only by natural persons. The doctrine of lifting the veil can be understood as identification of the company with its members. The company is equal in law to natural person. This is one of the cornerstones of Indian company law and has been followed since 1897. So this is the entire funda of the lifting the corporate veil कि जब बात मतलब in something comes or some any matter which is in grievous in nature, which is illegal in nature, then company का जो artificial person वाला characteristics है वो हट जाता है. Then it comes to personal कि एक्चुअल में ये गलती जो है वो किससे हुई है. सो दैट इज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. नाउ ये वाला जो केस है इन केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये जैसे मान लीजिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिवर्सल केस था, केशवानंद भारती हो गया या फिर कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के जो केसेस थे जो हर जगह लिखे जा सकते हैं. सोलोमन वर्सेस सोलोमन आपका कंपनी लॉ में एक यूनिवर्सल केस है जो कि आप मान लीजिए कंपनी लॉ के एनी टॉपिक में वो लिखा जाता है. जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में भी ये लिखा जाता है, लिखा जा सकता है कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी क्या है. तो ये एक बेसिक लैंडमार्क केस है 1897 का इंग्लिश केस लॉ है जिसपे कंपनी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए गए थे, जैसे कि कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है. इट इज रिलेटेबल टू एवरी फील्ड. सो Solomon versus Solomon Co. Limited 1897, it was considered from the justice point of view that a company is a legal person distinct from its members. The principle is regarded as wheel, curtain or shield. Wheel का मतलब either wheel है मतलब पर्दा, curtain मतलब या फिर screen या फिर shield जो भी है कंपनी का. It is but not a wall between the company and its members. कि ये है कि it's a temporary protection. Not a wall means it's a temporary protection. So it is lifted when something goes wrong. Now the effect of this principle is that there is a fictional wheel and it is permitted to look at the person behind the wheel. मतलब पर्दे के पीछे से वो देखा जा सकता है कि कौन गलती कर रहा है. इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए anything which is the company is somebody else is suing the company, so the corporate veil is lifted up to look at the person behind the veil. तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है कि बेसिकली हमने तो मीनिंग पढ़ लिया. नाउ इसका डिफरेंट डेफिनेशंस है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का और ब्लैक लॉ डिक्शनरी का. एरिस्टोटल ने भी इसके ऊपर डेफिनेशन दिया है. सो बट हमें बेसिक चीजें जो जानना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होते हैं. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब कौन से सेक्शंस में कंपनीज एक्ट में आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला टॉपिक है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मींस इसके रिलेटेड कितने सारे जो भी लैंडमार्क केसेस हैं और इसके एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है एप्लीकेबल नहीं है. So this entire topic will cover in the next class. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, आर यू ऑल क्लियर रिगार्डिंग द टॉपिक? और मैंने मटेरियल भी प्रोवाइड. मैडम ये जो है ना, हम सुनिए मैडम, एक मेरे रिक्वेस्ट तक हमने जितना 3 टॉपिक पढ़ा है आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके देन, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. ओके मैम, थैंक